Hello students, today I am going to discuss about this chapter, that is chemical bonding. So what is chemical bonding? Chemical bonding is nothing but the force of attraction which holds together the constituent atoms in a molecule. Maybe a molecule, maybe an ion. The constituent atoms which are present inside the molecule or ion, the force which holds them together, that is called chemical bonding. जैसे कि तुम लोगों को पता है एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन का एटम्स रहते हैं, तो एक हाइड्रोजन एटम और दूसरा हाइड्रोजन एटम के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किस लिए जुड़े हुए रहते हैं? क्योंकि उनके बीच कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग. जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन एटम्स रहते हैं और एक ऑक्सीजन एटम रहते हैं. ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम को आपस में जोड़ के रखने के लिए जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग. नाउ व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग? सो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग. Basically, chemical bondings, they may be classified into these types. First one is electrovalent, or else it is also called ionic bonding. Second one is called covalent bonding. Third one is called coordinate bonding, or it is also called dative bonding. Fourth one is metallic bonding. Fifth one is hydrogen bonding. So now out of this, only the first three are there in your syllabus. So चलो एक के बाद डिस्कस करते हैं. फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग और आयोनिक बॉन्डिंग. So let us look at the definition first. So what is ionic bonding or electrovalent bonding? The chemical bond which is formed by the complete transfer of valence electrons from one atom to another atom is called an ionic bonding or electrovalent bonding, and the compound formed is called an ionic compound or electrovalent compound. So यहाँ क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है, one or more valence electron is completely transferred from one atom to another atom. वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? The electrons which is present in the outermost shell, the electrons which are present in the outermost shell of an atom are called valence electrons. अब मान लो कि एटम A है and there is a valence electron here. Another atom B is there. If the valence electron of A is completely transferred to B, then what will happen? Atom A will become positively charged, atom B will become negatively charged. And as we all know, there is a force of attraction between the oppositely charged ions. So these oppositely charged ions, now they form a bond, and such type of bond is called ionic bond or electrovalent bond. Why it is called ionic bond? Because the compound is formed through the formation of ions. पहले ions formation हो गया, फिर compound formation होगा. And the type of bond is called ionic bond, and this compound form is called ionic compound. We will give example later on, but what are the conditions for formation of ionic bonding? ये ionic bond formation होने के लिए क्या क्या conditions चाहिए? Condition number 1,
conditions for formation of ionic bond. Condition number 1 is low ionization potential or low ionization energy or low ionization enthalpy. This potential can also be written as energy or enthalpy. So low ionization potential or low ionization energy or low ionization enthalpy. So what is ionization enthalpy? Let us first discuss. Now see, suppose here is an atom. At the center there is a nucleus as per Bohr's atomic model, and cells are there around it, and suppose an electron is there in the outermost valence shell, and this is an isolated neutral and gaseous atom. Suppose this is an isolated, अकेला है, neutral है, there is no charge over the atom and it is in the gaseous form. अब ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको निकालने के लिए हमें कुछ एनर्जी चाहिए. अगर एनर्जी हम लोग सप्लाई करेंगे यहाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड, and the amount of energy which is required to remove the electron from the outermost shell of an isolated neutral gaseous atom is called ionization energy or ionization potential. So ये इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना एनर्जी हम लोग को सप्लाई करना पड़ेगा उसको कहते हैं आयनेशन पोटेंशियल. और एक एटम का आयनेशन पोटेंशियल लो होना चाहिए. That means if you supply little quantity of energy, then the electron should be ejected from the outermost shell. तभी तो प्लस आयन फॉर्मेशन हो पाएगा. तो कंडीशन के हिसाब से आयनेशन पोटेंशियल लो होना चाहिए. अब किनका आयनेशन पोटेंशियल लो है? We have the periodic table and number of elements are there in the periodic table. तो कौन सा एलिमेंट्स का आयनेशन पोटेंशियल लो है और किसका ज़्यादा है? Let us discuss. So suppose if we move in the periodic table from left to right, suppose lithium, then beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine. If you move from left to right, the atomic size gradually decreases as we move from left to right in a periodic table, along a period in the periodic table. So as the atomic size decreases, the valence electron becomes closer to the nucleus. If the valence electron is closer to the nucleus, then the force of attraction will be more. And here in this case, the electron is far away from the nucleus, so the force of attraction is less, and little quantity of energy is required to remove this electron. So here ionization energy is low. That means those elements which are present in the group 1 and group 2, they have low ionization potential. तो बेसिकली ये दोनों ग्रुप्स, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 का जो एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, उनका आयनेशन पोटेंशियल लो है एंड दे फॉर्म आयनिक बॉन्डिंग. तो ग्रुप 1 एंड 2 में क्या क्या है? बेरिलियम के नीचे है सोडियम, देन पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम. बेरिलियम के नीचे है मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम. ये जो एलिमेंट्स है, दिस हैव लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल and this can form ionic bonding. This is the condition number 1. Next is condition number 2. Second condition is high electron affinity. High electron affinity. It is, just understand, this is just the reverse of ionization energy. That means, suppose here is an atom, an isolated neutral gaseous atom, and we are going to add an extra electron to this atom. अगर हम लोग एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसको ऐड करेंगे, इसमें से कुछ एनर्जी निकल जाएंगे.
some energy will be emitted, and that energy is called electron affinity. Affinity for electron, attraction for electron. So atom jitna chota hoga, the nucleus will be closer to the outermost shell, and easily that electron can be added. That means the atoms which are very small in size, they have higher affinity for electron. They have high electron affinity. So in that context we can say the elements which are in the extreme right of the periodic table except the zero group elements, क्या है? हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, इनको छोड़ दो, बाकी जो दो ग्रुप बचा, कौन सी ग्रुप? ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17. 16 में है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम. ग्रुप 17 में है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन. अब ये जो दो ग्रुप्स हैं, द एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स आर वेरी स्मॉल इन साइज and they have high electron affinity values. They can accept electrons. तभी तो ये माइनस बनता है. ऑक्सीजन 2 माइनस बन जाएगा, सल्फाइड आयन, सेलेनाइड, टेलुराइड आयन, सिमिलरली फ्लोराइड आयन -1, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन. तो ये दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके आयन्स बनेंगे, और जो हेलोजेंस फैमिली का एलिमेंट्स है, दे एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन, दे बिकम मोनोनेगेटिव आयन्स. Third condition is lattice energy. Now what is lattice energy? ना मान लो कि एक आयनिक बॉन्ड है, दो एटम्स है और दोनों एटम के बीच एक आयनिक बॉन्ड है. ये बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितना एनर्जी चाहिए, 1 mole of such ionic bond, if you break, the amount of energy that will be required is called lattice energy. और सपोज दो आयन्स है, अपोजिट चार्ज आयन्स है, A प्लस B माइनस, दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा, और जैसे ही बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे कुछ एनर्जी निकल जाएगा, कुछ एनर्जी रिलीज होगा. दैट एनर्जी इज ऑल्सो कॉल्ड लैटिस एनर्जी. इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज इन्वॉल्व इन ब्रेकिंग और मेकिंग 1 mole of an ionic bond. That is called lattice energy. तो मान लो कि मेरे पास एक आयनिक बॉन्ड है A और B के बीच में, अनदर आयनिक बॉन्ड है C और D के बीच में. अगर मैं इसको तोड़ता हूँ और इसको भी तोड़ देता हूँ, इसमें से एनर्जी निकलेगा, दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी. इसमें भी एनर्जी निकलेगा, दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी. अब अगर इसमें ज्यादा लैटिस एनर्जी लग रहा है, मतलब ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, और इसमें अगर कम एनर्जी लगता है इसको तोड़ने में, तो इसका लैटिस एनर्जी लो है. तो अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो फिर कंपाउंड भी स्ट्रॉन्ग है. दैट मीन्स हाई लैटिस एनर्जी फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड. सो हाई लैटिस एनर्जी फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड. तो अभी तक हम लोग क्या समझे? कंडीशंस के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ग्रुप 1 एलिमेंट जो है, इसमें है मेटल्स जो अक्सर है, लिथियम, देन सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांक्सियम. सेकेंड ग्रुप है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोमशियम, बेरियम, रेडियम. और इधर है ग्रुप 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम. और ग्रुप 17 में है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टर. अगर केमिकल बॉन्ड ये दोनों ग्रुप में किसी में से इसके साथ हुआ है तो आयनिक बॉन्ड. जैसे कि यहाँ सोडियम है और यहाँ क्लोरीन है, तो सोडियम क्लोराइड, इसके अंदर जो बॉन्ड होगा दैट इज आयनिक होगा. अब यहाँ मैग्नीशियम है और यहाँ सपोज सल्फाइड है, MgS, it is ionic. Now suppose potassium is there and oxygen is here, so K2O, potassium oxide, it is ionic. समझ रहे हो? अब यहाँ कैल्शियम है, इधर क्लोरीन है, मान लो कि ब्रोमीन है, सो कैल्शियम ब्रोमाइड.
It is also ionic. Now, can you tell me MgS whether it is ionic or not? Yes, I have already given this one. Okay, anyway. Now, suppose BeF2 whether it is ionic or not. Yes, here beryllium is there and fluorine is here. So, ionic bond. Now, can you tell me CCl4 carbon tetrachloride whether it is ionic? क्लोरीन तो है यहाँ, लेकिन कार्बन इधर नहीं है. So, this is not ionic. Similarly, suppose AlCl3 aluminium chlorine, क्लोरीन तो राइट साइड में है ये वाला, लेकिन लेफ्ट साइड में हमारा जो है एल्यूमिनियम नहीं है. सो दिस इज ऑल्सो नॉट आयनिक. और एक बात, अब मान लो कि H2O, ऑफकोर्स ग्रुप 1 में हाइड्रोजन इंक्लूड है. अब यहाँ हाइड्रोजन है, इधर ऑक्सीजन है, लेकिन ये आयोनिक नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है ये नॉन मेटल है, एंड इसको छोड़ के बाकी जो मेटल्स है और इधर का जो नॉन मेटल्स है उनके बीच आयनिक बॉन्ड होगा. तो आयनिक बॉन्ड किसके के बीच होता है? सो आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड between one left side metals है, right side non metals है. So metals and non metals, it is formed between electropositive and electronegative elements. Similar, metals are electropositive, non-metals are electronegatives. It is formed between group 1, 2 and group 16, 17. It is formed between stable ions, जैसे कि सपोज सोडियम, अब इसका एटॉमिक नंबर 11 है, 2, 8 एंड 1, बैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन 17, 2, 8 एंड 7, देयर आर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. नाउ सपोज इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम इज कंप्लीटली ट्रांसफर टू क्लोरीन. अब ये क्या हो जाएगा? Na+ बन जाएगा, और इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 10 इलेक्ट्रॉन. 10 इलेक्ट्रॉन मतलब किसका कन्फिग्रेशन? नेयर है, नेयर स्टेबल है. सो दिस इज अ स्टेबल आयन. सिमिलरली क्लोरीन, अब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट कर लेता तो बस Cl- बन गया, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विल बी सिमिलर टू दैट ऑफ व्हाट? आर्गन. 2, 8, 10, 8, 18 इनर्ट गैस एलिमेंट, स्टेबल. सो ये स्टेबल आयन, ये स्टेबल आयन, इनके बीच आयनिक बॉन्डिंग हो गया. नाउ V, it is formed between the atoms of different elements. So ionic bonding is always formed between the atoms of different elements. Atoms of the same or similar elements, they never form ionic bonding. For example, let me rub this. For example, suppose A और B दो एटम्स हैं, इनके बीच आयनिक बॉन्डिंग हो सकता है, लेकिन A या फिर B के बीच आयनिक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है. सो इट इज ऑलवेज फॉर्म बिटवीन द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट. क्योंकि अगर सेम एलिमेंट या फिर सिमिलर एलिमेंट होगा तो इसका अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो भी इसका भी डेफिशिएंट होगा, अगर इसका ज़्यादा होगा तो भी इसका भी ज़्यादा होगा, तो कौन किसको देगा? डोनेट करेगा? इट इज़ नॉट पॉसिबल.
ठीक है। जैसे कि मान लो कि ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर इसका 8 है, 2 और 6, बाहर 6 इलेक्ट्रॉन है, और एक ऑक्सीजन एटम मान लो कि इसका 1 2 3 4 5 6, इसका भी 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। अब कौन किसको डोनेट करेगा? दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, 2 इलेक्ट्रॉन शॉर्टेज है नियरेस्ट नेट गैस होने के लिए। अब इसका भी 2 शॉर्टेज है, अगर ये इसको दे देता है तो फिर इसका तो 8 बन गया, लेकिन इसका क्या होगा? 4 है, इसको भी चाहिए 2, लाइक 2 बेगर्स दे आर बेगिंग ईच अदर, तो कौन फेंक देगा? हाँ, तो यहां क्या होगा? शेयर कर देंगे अपने इलेक्ट्रॉन, वो कोवैलेंट बॉन्डिंग बन जाएगा। तो इट इज ऑलवेज फॉर्म बिटवीन द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। नाउ चलो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ sodium chloride, the most common any compound. It is also called common salt, table salt, sodium chloride. तो सोडियम, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ सोडियम, मैंने लास्ट क्लास में बताया था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन कैसे लिखते हैं। तो सोडियम एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। अब ये है फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल और वैलेंस सेल। वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। नाउ क्लोरीन 17, कन्फिगुरेशन अगर लिखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, 6 4 10 7 17। ये वैलेंस सेल है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 7 है। Now sodium has got 1 valence electron and chlorine atom has got 7 valence electrons. लेकिन ऑक्टेट होना चाहिए दोनों को, that is your octet rule. The capacity or tendency to accommodate 8 electrons in the outermost shell of an atom is called octet rule. So अब इसको 8 चाहिए, इसको भी 8 होना चाहिए। अब क्या कैसे करने से होगा? अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट हो जाता है तो इसका भी 8 बन गया, इसका भी इनर सेल में 8 हो गया, आउटर मोस्ट सेल हो गया ये। सी सोडियम 11, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हम लोग 281 लिख सकते हैं। इट loses its electrons and become Na+ with electronic configuration similar to that of neon 10. Chlorine atomic number 17 with configuration 2, 8 and 7. It has 7 valence electron. Accepted this electron donated by sodium and it will become Cl- with configuration similar to that of argon. Now what will happen? ये पॉजिटिव आयन बन गया, ये नेगेटिव आयन बन गया, आपस में अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये बन जाएगा आयनिक कंपाउंड NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। ये सोडियम बीच में है 11 प्रोटॉन, फर्स्ट सेल में है 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में है 8 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड सेल जो है इट कंटेन्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। दिस इज सोडियम। And chlorine atom, suppose here is the nucleus, first cell contains 2 electrons, second cell contains 8 electrons and third cell contains 7 electrons, 7। अब इसका आउटर मोस्ट सेल में 8 चाहिए तो 7 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा ये Na+ बन जाएगा, वो Cl- बन जाएगा, आपस में आयनिक बॉन्डिंग फॉर्मेशन कर लेंगे। क्लियर? ओके, या फिर आप बोलो ऐसे भी बना सकते हैं। सोडियम का आउटरमोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, क्लोरीन का आउटरमोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स था। अब यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो गया, ये बन गया Na+ और ये बन गया Cl-, आपस में अट्रैक्शन होगा और NaCl कंपाउंड फॉर्मेशन होगा।
In a similar manner, let us have another example, formation of calcium chloride CaCl2. Electronic configuration of calcium atomic number 20, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 and 4s2. Now 6 4 10 8 8 2 20, and chlorine has got 17 electrons, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. इसका वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, ठीक है। लेकिन 2 क्लोरीन एटम्स है यहाँ। तो कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, 2, 8, 8 एंड 2 था, 2 इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट कर दिया, बन गया Ca2+, कन्फिगरेशन हो गया सिमिलर टू दैट ऑफ आर्गन। और यहाँ 2 क्लोरीन एटम्स, इसका कन्फिगरेशन 2, 8 एंड 7 था, एक्सेप्टेड द इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम 2Cl- विथ कन्फिगरेशन अगेन सिमिलर टू दैट ऑफ आर्गन। अब इनके बीच अट्रैक्शन होगा और फॉर्मेशन होगा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2. Now let us understand this in this way. लुईस स्ट्रक्चर, कैल्शियम 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, एक क्लोरीन इधर इसका 7 इलेक्ट्रॉन, और अनदर क्लोरीन एटम हैज ऑल्सो गॉट 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया 2+, ये एक इलेक्ट्रॉन सेट किया -1, ये इलेक्ट्रॉन सेट किया -1। ना उनके बीच अट्रैक्शन होगा और कैल्शियम क्लोराइड फॉर्मेशन होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। First one, these exist in solid state. Ionic compounds, they exist in solid state. These have high melting point, high boiling point. These have high densities. These are soluble in polar solvent like water, but are insoluble in non-polar solvent or organic solvents like ether, carbon tetrachloride, benzene, carbon disulfide, toluene, petrol, diesel, kerosene, all these things. These are good conductor of electricity in their molten state, in their fused state, or in their solution state. But these are bad conductor in their solid form. These are crystalline in nature. They form crystal lattices. Then these do not show isomerism. Now what is isomerism? मान लो कि इथाइल अल्कोहल C2H5OH, इसमें 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन है, और डाई मिथाइल ईथर CH3OCH3, इसमें भी 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों अलग अलग कंपाउंड्स हैं। ये जो फेनोमेनन कहते हैं इसको आइसोमेरिज्म, and these are called isomers. That means the compounds having same molecular formula which differ in their physical and chemical properties due to their structural difference, they are called isomers, and the phenomenon is called isomerism. These do not show isomerism. Okay, thank you.